दोस्तों 2017 का आगाज़ हो चुका है और इसके लिए मैं आपको वेलकम करता हूं 2017 के अंदर। और उम्मीद करता हूं कि आपने अभी तक अपने 2017 के लिए, नए साल के लिए रेजोल्यूशंस बना ली हैं। अगर रेजोल्यूशंस की बात की जाए तो रेजोल्यूशन का मतलब होता है रेजोलेट करना। रेजोलेट करने का मतलब है टू कट ऑफ एनी पॉसिबिलिटीज ऑफ हैविंग गोइंग बैक। जैसे तारक बिन ज़ियाद ने अपनी कश्तियां जला दी थी स्पेन के मार्के के अंदर, बर्न द ब्रिजेस। सो दिस इज व्हाट रेजोल्यूशन इज। अगर आपने अपनी रेजोल्यूशन अभी तक बनाई नहीं तो इस 5 मिनट के क्लिप के अंदर मैं आपको कुछ आइडियाज दूंगा कि आप रेजोल्यूशन बना सके। रेजोल्यूशन आप बना सकते हैं। रेजोल्यूशन बेसिकली comes from it normally derives from come from the ideas, aspirations, goals, eventually becomes a resolution, and resolution is to cut off any possibility of going back. आपने क्या करना है कि रेजोल्यूशन क्या बनाई जाए, कुछ आइडियाज अब शेयर करने के लिए। वेट लूज करना, वेट गेन करना, ये एक रेजोल्यूशन हो सकती है। टू लूज सम पाउंड्स, टू पुट ऑन सम पाउंड, दैट्स द रेजोल्यूशन। To do a course, a university degree, or to continue doing what you're doing, और उसके अंदर अच्छे marks लेना, that's another resolution. To start a new job, और जो अगर आपकी existing job है तो उसके अंदर to get a new promotion, ये एक और resolution हो सकती है। To if you're working in a job and you want to change your career and you're going into a business, अगर business में चले जाना चाहते हैं तो that's another resolution, that's a good resolution to have. To write a book, to read few books, that's another resolution. To travel around the world, or at least travel to one country or to a multiple countries, go around the globe, that is traveling is another resolution. उसके लिए to get married, to get your daughter, your son, your brother, sister, or someone else engaged and married is another resolution that you can have. उसके लिए to propose a girl that you love, or get someone to propose you because you love them and they love you, that's another resolution that you can have. So there are multiple resolutions that you can choose. Normally reading the books and writing a book is probably my favorite resolution. Traveling around the globe is my favorite resolution. आप इनमें से किसी भी किस्म की resolution ले सकते हैं. These are all necessary resolutions that आप उनको में से किसी ना कुछ चूज जरूर करना चाहिए। रेजोल्यूशन चूज करने से पहले आप पहले ये देख लें कि if you're going to follow through, then set the resolution. If you're not going to follow through, इसका फायदा नहीं है, क्योंकि मॉडर्न साइकोलॉजी कहती है कि if you start a process and you don't follow through, your brain gets so used to of being a failure, of being defeated, that it doesn't set any new goals. So अपना फ्यूचर रुइन ना करें, रेजोल्यूशन बनाएं और उसको फॉलो थ्रू भी करें। उसके लिए रेजोल्यूशन टू राइट इट डाउन, बिकॉज एनी गोल, एनी रेजोल्यूशन दैट्स रिटन डाउन इज बेटर देन नॉट रिटन डाउन गोल। पहली बात, राइट, मेक रेजोल्यूशन, राइट इट डाउन, follow through, make it public, announce it, because a goal, a resolution is better than no resolution, no goals. A written resolution, a written goal is better than any resolution, any goal. A spoken, announced resolution, announced goal is better than any written resolution. So basically, आप जब announce कर देते हैं, you commit yourself and you make yourself accountable for that. ये resolution को follow through का सबसे आसान तरीका है। उसके अंदर आपको क्या करना चाहिए कि आप फॉलो थ्रू को आसान करने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप जो रेजोल्यूशन बनाए, सी योर सेल्फ इन टू दैट रेजोल्यूशन। आप उस गोल की अचीवमेंट में अपने आप को खुद देखें, आपको पता चले, और आपका ब्रेन, आपका माइंड उसको एक्सेप्ट करे कि दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू गेट देयर, और एक छोटा सा प्लान बनाएं और विजुअलाइज करें अपने गोल को, अपनी रेजोल्यूशन को। वीकली उसको रिव्यू करें, मेक स्मॉल मूव्स, मेक स्मॉल चेंजेस इफ इट इज रिक्वायर्ड, और उसके अंदर चेंजेस करने के बाद आप उसको फॉलो थ्रू करते जाएं। क्योंकि होता अमूमन यह है कि बाय मिड ऑफ जनवरी और बाय एंड ऑफ जनवरी most 95% of the resolutions are already died out. क्योंकि हम ये सोचते हैं कि पिछले साल की रेजोल्यूशन का, गोल का कुछ नहीं किया, उससे पिछले साल का कुछ नहीं किया। See, one thing that you need to remember is past do not equal future. ठीक है,
पास्ट का मतलब ये है कि अभी जो 5 मिनट पहले जो सोचा था, जो कहा था, 2 सेकंड पहले जो सोचा था, कहा था, डज नॉट इक्वल फ्यूचर. फ्यूचर इज व्हाट आई एम गोइंग टू से. जो फ्यूचर वो है जो होने वाला है. जो अगर आपका पास्ट में कोई एक्शन काम नहीं किया तो इट डजंट मीन दैट इट्स नॉट गोना वर्क इन फ्यूचर. अब फ्यूचर के लिए पास्ट के एक्सपीरियंस को इस्तेमाल करके फ्यूचर को इग्नोर ना करें. आपका अगर पुरानी गोल्स या रेजोल्यूशंस काम नहीं किए 2016 के अंदर या दिसंबर के अंदर या 31 दिसंबर को या दिस मॉर्निंग, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप आगे से गोल सेट ना करें. हाँ, अपना गोल्स को चेंज करें, उनको रिव्यू करें, बी प्रोग्रेसिव, बी मूविंग, इनको मूव करते रहें, उनको रिव्यू करें, उनके अंदर मजीद चेंजेस करें, एक ट्रेल ऑफ कॉजेशन सेट करें. गोल सेट करने के लिए पहले रीजंस बना ले. रीजंस आर ऑलवेज ग्रेटर देन द अचीवमेंट्स. रीजन को बड़ा करें तो आपकी अचीवमेंट आसान होती जाएंगी और गोल्स के रिजल्ट जो ना आउटकम वो आपके फेवर में जरूर आएगी. आप मेरे वीडियो को शेयर करें, दोस्तों के साथ, दूसरों के साथ भी शेयर करें. वन थिंग यू डू नीड टू रिमेंबर, यू नीड टू हैव अ रेजोल्यूशन फॉर 2017, एटलीस्ट वन. ओके, एक कम से कम रेजोल्यूशन जरूर होनी चाहिए 2017 के लिए, और जिसको आप फॉलो थ्रू करें. अगर आपको अकाउंटेबिलिटी के लिए अपने अनाउंसमेंट रेजोल्यूशन को पब्लिक करना है तो प्लीज कीप इन टच विद मी एंड आई कैन हेल्प यू विद दैट. और मेक योरसेल्फ अ मास्टरमाइंड ग्रुप, सराउंड योरसेल्फ विद सक्सेसफुल पीपल. कामयाब लोगों को अपने आप से सराउंड करेंगे तो आपकी विजुअलाइजेशन का जो टेक्निक है वो इट विल वर्क टू बेस्ट ऑफ इट्स काइंड. आप अपने आप को अच्छे लोगों के सराउंड करें, अच्छे दोस्त बनाएं, उन लोगों के साथ उठना बैठना शुरू करें जिनकी स्ट्रॉन्ग रेजोल्यूशंस हैं, जिनके गोल्स हैं, जिन्होंने गोल्स अचीव किए हैं, एंड दे डू इट ऑन रेगुलर बेसिस. आपका गोल भी कामयाब होगा. रीजंस बड़ी कर लें, गोल आपका अचीव करना आसान हो जाएगा. और दैट्स माई विश टू 2017 टू ऑल माई फॉलोअर्स, फैंस एंड फ्रेंड्स, फैमिली एंड एवरीवन अराउंड. लिव विद पीस इन 2017. वी होप कि 2017 हमारे लिए बहुत कामयाबियों का साल होगा. जो कामयाबियां हमने जहां पे 2016 में छोड़ दी थी, 2017 से हम वहीं से शुरू करेंगे. एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर 2017. हैप्पी न्यू ईयर. थैंक यू.